Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। क्या परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार है? Are you ready to worship and praise the King of Kings and the Lord of Lords? आपका प्रभु यीशु है, आपका राजा यीशु है. The King and the Lord of your life is none other than Jesus. So let us worship and praise Jesus. क्यों ना हम उस यीशु का आराधना और स्तुति करें. जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, मिलकर एक साथ एक मन होकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसका स्तुति करें. I come before you. मैं तेरे सामने आता हूं और मैं कहता हूं धन्यवाद. Thank you Lord for all that you have done in my life. जो कुछ भी आपने मेरे जीवन में किया है, उन सारे बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं. For all the blessings that I cannot see. बहुत सारे आशीष जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आपने वो मेरे लिए उंडेल चुका है, रिलीज कर लिया है. मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे. अब जहां भी समय है, फोकस ऑन जीसस. स्टे अलर्ट टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. पवित्र आत्मा में आप एकाग्रत हो जाए, जागृत हो जाए और हम मिलकर उसका स्तुति और आराधना करेंगे. And just one thing that I wanna say, thank you Lord, thank you Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you Lord, thank you Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord. Thank you Lord for all that you have done in my life. I give thanks to you. आपने जो कुछ भी मेरे जीवन में किया है, मैं आपको धन्यवाद देते हैं. I come before you today and there's just one thing that I want to say. एक ही बात में आपसे कहना चाहते हैं, thank you Lord. I come before you today and there's just one thing that I wanna say. Thank you Lord, thank you Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you Lord, thank you Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm,
I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are, to worship. Come, just as you are, before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Jesus. Come on, lift it up, lift it up, lift it up. अपने आवाज को उठाकर, वही काफी है मेरे लिए। जीसस, यीशुआ, तू ही काफी है मेरे लिए। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु।
यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। Yeshua, tararararara, tarara. Hallelujah, 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 hallelujah. सब लोग मिलकर हालेलुया, 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 Mighty Holy Spirit, Hallelujah, Hallelujah. अब जहां भी है अपने हाथों को उठाकर Hallelujah.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, 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 Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Glory, glory, glory. Jesus, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई इस समय हर एक के जीवनों में, आपकी उपस्थिति हर एक के जीवनों में इस समय अब उंडेल रहा है. Pouring your presence into every heart, हर एक हृदयों में आपके विशेष उपस्थिति. Glory, 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 Jesus. आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए. आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए. यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है. यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है. समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा. समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा. ओ हालेलुया, 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 हालेलुया. आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए. आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए. आदर महिमा, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए. ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे. अपने हाथों को उठाकर आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए. होसाना, होसाना, होसाना in the higher. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the higher. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the higher. Hosanna, Hosanna,
Hosanna in the higher. Hosanna in the higher. Hosanna in higher. Hosanna in the higher. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु आपकी विशेष उपस्थिति के लिए, आपकी अद्भुत अगुवाई के लिए धन्यवाद। आराधना का एक पीढ़ी इन दिनों में भारत के अलग अलग जगहों में से सच्चे आराधक इन दिनों में खड़े होने पाए। हर कलीसियाओं में, हर सेवकाई में सच्चे आराधक लोग खड़े होने पाए। थैंक यू। आगे भी आप हमें अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार रविवार के दिन सुबह आपके सामने इस YouTube चैनल के द्वारा आने में प्रभु ने अगुवाई किया, मदद किया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। काफ़ी हफ्तों से हम लोग अद्भुत ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं। अलग अलग घरों में, अलग अलग जगहों में बैठकर हम लोग परमेश्वर की आराधना ऑनलाइन के द्वारा कर रहे हैं। इस हफ्ते भी प्रभु हमें ऐसे जुड़े रहने में मदद किया है। भजन संगीता में ऐसे लिखा है, कितना अद्भुत और धन्य बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। दुनिया ने सोचा, शैतान ने सोचा कि कलीसिया का संगति टूट जाएगा, अब आपस में देखना मिलना मुश्किल हो जाएगा। मगर थैंक गॉड फॉर वंडरफुल टेक्नोलॉजी। इन माध्यमों के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हम आपस में मिले जुले रहने में प्रभु ने हमें मदद किया है। काफ़ी दिनों से हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। एक नया दिशा कलीसिया के लिए प्रभु ने खोला है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यदि आप में से कोई भी हमें पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप कृपया आपका डिटेल्स नीचे जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं वहाँ पर आप टाइप करके डालें। आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम और आप कहाँ से हमें देख रहा है ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि कलीसिया से, चर्च से कोई आपको फ़ोन करे और आपके लिए प्रार्थना करे तो कृपया आपको ये डिटेल्स नीचे देना ज़रूरी होगा। विशेष रूप से आपको हम इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू टू दिस ऑनलाइन सर्विस। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आज का वचन आपके जीवन में बहुत कार्य करेगा। एक प्रभु के कार्य के लिए परमेश्वर आपको आज तैयार करेंगे। और कलीसिया के हर परिवार जो हमें अलग अलग इलाकों में से, घरों में से देख रहे हैं, हर एक को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार प्रार्थना में हैं। जूम एप्लीकेशन के द्वारा आप लोग सब जुड़े हुए हैं, सुबह और शाम, सुबह और शाम। आप जानते हैं कि 15 दिन लगातार हम प्रार्थना में हैं। अभी लगभग 7-8 दिन बीत गया है। एक हफ्ता और हमारे लिए ये प्रार्थना जारी रहेगा। उन लोगों के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहते हैं जो अभी तक जूम प्रेयर में जुड़ा नहीं है, कृपया आप जूम प्रेयर में जुड़ जाइए। हो सकता है आप जूम एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप जुड़े नहीं हैं। उत्साहित करना चाहते हैं आपको कि आप इस हफ्ते जो प्रार्थना है, जो आखिरी हफ्ता है इस प्रार्थना का, जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अद्भुत कार्य इन प्रार्थनाओं के द्वारा कर रहे हैं। जवान लोग, बच्चे लोग, सब लोग इस प्रार्थना में जुड़े रहें। यदि आपको लगता है कि आप अभी तक जूम एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया है या फिर आपको यूज़ करना नहीं आते हैं, ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है। जूम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में
यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर में आप जाएं और वहाँ पे जूम का एप्लीकेशन डाउनलोड का बटन क्लिक करें और आप डाउनलोड करें। यदि आप आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर में ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा लॉगिन कर सकते हैं। आपका नाम और आपका एक प्रोफाइल आराम से बना सकते हैं। पूरा डिटेल्स वहाँ पर ही दिया गया है। उसको बनाकर आप हर एरिया के व्हाट्सएप के ग्रुप में हर दिन जूम का लिंक भेजा जाता है। तो आप यदि शनि बाज़ार से हैं, यदि आपको लगता है आप संगम विहार एल फर्स्ट से हैं, यदि आपको लगता है आप तिगड़ी से हैं, जो अभी तक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया उस जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आपके एरिया में व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक हर दिन आते हैं उसको क्लिक करके आप इस प्रार्थना में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे क्यों करना है पास्टर जी? ये सब क्यों करना है? देखिए, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर आराधना करने में जब हमारे सामने रुकावटें हैं तो इन माध्यमों का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अकेले प्रार्थना करके बढ़ना मुश्किल है। आपको एक दूसरे के साथ बैठकर भी प्रार्थना करना जरूरी है। यदि आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं, इस कलीसिया का सदस्य हैं, तो कलीसिया इन दिनों में जो अगुवाई में है उसमें जुड़े रहना जरूरी है। और उन लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहते हैं जो अपने एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत क्रियाशाली हैं, हमेशा मैसेज डालते हैं, आपका उत्साह के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मगर एक बात आपको ध्यान देना है, इधर उधर के फॉरवर्ड मैसेजेस, ये बातें वो बातें आपके एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप में आप कृपया ना डालें। एक गुड मॉर्निंग भी डालने की ज़रूरत नहीं है, गुड नाइट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये डालने से एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो जूम का लिंक ढूंढते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे और बातें और मैसेजेस ग्रुप में आ जाते हैं और वो जूम का लिंक फिर ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहे हैं। तो कृपया फॉरवर्ड मैसेजेस आपकी एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी ना डालें। आप सुबह 11 बजे, शाम को 7 बजे दोनों सेशन में हर दिन जो आने वाले दिनों में प्रेयर चलेंगे, उसका जूम का लिंक आते हुए इंतज़ार कीजिए और ठीक समय पर लिंक पर क्लिक करके आप प्रेयर में जुड़ जाइए। 15 दिन के अंत में 50 घंटे का लगातार प्रार्थना भी होने वाले हैं। ये कैसे होगा? ये भी जूम के द्वारा ही होगा। जूम का एक ही आईडी से लिंक आपके हर एरिया व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। लगातार प्रार्थना 26 जून सुबह 11 बजे से लेकर 28 जून दोपहर की 1 बजे तक 50 घंटे लगातार प्रार्थना होगा। एरिया का लीडर्स इस प्रार्थना को अगुवाई करेंगे। हर एक समय एक एरिया लीडर्स को दिया गया है, उनके समय पर वो लॉगिन करेंगे और वो प्रार्थना को जारी रखेंगे। मगर जितने भी लोग 50 घंटा पूरा रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। यदि आपको लगता है आप 5 घंटे रह सकते हैं तो आप 5 घंटे बने रह सकते हैं। यदि आपको लगता है आप 1 घंटे रह पाएंगे वो भी कर सकते हैं, मगर जितना ज़्यादा जुड़े रहना आप पसंद करते हैं उतना ज़्यादा आशीषित आपके जीवन में होगा। तो 50 घंटे की प्रार्थना भी 15 दिन के अंत में होगा। वो प्रार्थना भी जूम के द्वारा ही होगा। वो सुबह से लेकर रात को लेकर अगले दिन को लेकर 2 दिन लगातार 50 घंटे प्रार्थना जारी रहेंगे। तो जूम में ये सुविधा है कि हम कर सकते हैं, तो हम करने के लिए सोचा है। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। इसलिए एक और अनाउंसमेंट आपको कहना चाहते हैं। इस हफ्ते भी ये जूम का प्रार्थना जारी रखने के कारण एरिया मीटिंग्स अलग अलग इलाकों में इस हफ्ते नहीं होगा। और थर्सडे गुरुवार को जो बाइबल स्टडी होते थे वो भी इस हफ्ते नहीं होगा। शुक्रवार की अपर रूम प्रेयर भी इस हफ्ते नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे हफ्ते सुबह शाम अगले रविवार तक जूम का प्रार्थना जारी रहेंगे।
सब लोग, जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सब लोग इस जूम के प्रार्थना में जुड़े रहें। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। नए लोग कृपया आपका डिटेल्स नीचे बताइए, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। यदि आप किसी भी विषय को लेकर बोझ में हैं, परेशानी में हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। पहले आप आपका नंबर नीचे डाल दीजिए, हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। परमेश्वर का वचन से हम आगे सुनने जा रहे हैं। प्रभु के दास पास्टर शिपिन इस हफ्ते भी हमारे सामने आएंगे, परमेश्वर के वचन से हमसे बांटेंगे। प्रभु के दास को वचन की सेवकाई के लिए स्वागत करते हैं। ओवर टू पास्टर शिपिन। Praise God. I thank God for this wonderful time. परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। Such a great honor and privilege to come to you and to share the word of God. ये बहुत ही आदर की बात है कि मैं आपके बीच परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। Our Jesus, His love is endures forever. हमारे यीशु मसीह का प्रेम हमेशा के लिए है। He loves us so much. वो हमसे बहुत प्यार करता है। My prayer is, may all of us experience His love more and more day by day in these days. मेरी यही प्रार्थना है कि आप में से हर एक व्यक्ति उसके प्रेम को और अधिक चखें। Today He wants to talk to each one of us. वो आप सभी से आज के दिन बात करना Are you चाहता ready है। to hear from the Lord? क्या आप उससे सुनने के लिए तैयार हैं? Come with a prayerful and expected heart. एक प्रार्थना के हृदय के साथ आप सभी आएं। Come turn our Bible, Acts chapter 2, verse 1 to 4. हम वचन को देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक। When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Praise God. We all know this incident. हम सब इस घटना को जानते हैं। When the day of Pentecost had fully come, Bible says they were all with one accord in one place. जब पेंतिकुस्त के दिन आया, वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो एकता के साथ एक जगह इकट्ठे हुए। Just before the ascending of Jesus, Jesus gave a command to his disciples. यीशु स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों से ये बात कहा। The commandment is this. Being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me. For John truly baptized with the water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now." और यीशु ने इस प्रकार कहा कि तुम सब एक जगह इकट्ठा रहना और यरूशलेम से ना जाना, और पवित्र आत्मा तुम सब पर उतरेगा। So 120 people, they stayed in Jerusalem, and in the upper room they were waiting for one thing. 120 लोग ऊपरी कोठरी में एक ही चीज के इंतजार में थे। 10 days, after 10 days, when the day of Pentecost had fully come, 10 दिन के बाद जब पेंतिकुस्त का दिन आया, they all were with one accord and in one place. वो सब एक मन के साथ, एकता के साथ एक जगह Bible इकट्ठा says हुए। suddenly
there came sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. और वचन में लिखा है कि जब वो ऐसे बैठे थे तो अचानक से आकाश से सनसनाहट की आवाज सुनाई दी Suddenly, the Holy Spirit appeared there और अचानक से पवित्र आत्मा वहां उतर गया like a mighty rushing wind. एक आंधी की सी सनसनाहट जैसे It filled all the place, और वो पूरे जगह में भर गया and there appeared to them divine tongues और उनके ऊपर आग की सी जीभें उतर as गई of fire, and one sat upon each of them. और वो आग की सी जीभें उनमें से हर एक के ऊपर उतरी And when they were all filled with the Holy Spirit और जब वो हर एक पवित्र आत्मा में भर गए and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. और जब पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ दिया वो अन्य अन्य भाषा में It बोलने was the लगे first time in the history ये पहले बार इतिहास में हुआ Holy था Spirit came upon a group of people and they were started to speak in tongues. पवित्र आत्मा उस झुंड के ऊपर उतरा वो अन्य भाषा में बोलने लगे First time in the history of church, it happened. First time this place was where the birth of church. कलीसिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के ऊपर उतरा Such first time the human being is experiencing such kind of outpouring of Holy Spirit. इतिहास में पहली बार परमेश्वर ये लोग पवित्र आत्मा को अनुभव कर रहे हैं When it happened, जब ये हुआ Bible says when the day of Pentecost had fully come, वचन कहता है जब पेंतिकुस्त का दिन आया they were all with one accord in one place. वो सब एकता के साथ एक जगह इकट्ठा थे In one accord in one place. एकता के साथ एक जगह Last 10 days, पिछले 10 दिन 120 people were praying together. 120 लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना They कर रहे were थे praying and they were doing the supplication वो प्रार्थना में लोलीन थे and they were patiently waiting. और वो बड़े नम्रता के साथ इंतजार कर रहे थे Clinging together in harmonious expectancy. और वो पूरी एक मन एक हृदय के साथ उसके इंतजार में थे 120 people 120 लोग praying for one thing. एक चीज के लिए They प्रार्थना कर रहे were praying हैं for, they were waiting for one thing. वो एक चीज के इंतजार में है They were expecting one thing. वो सिर्फ एक चीज की ओर लगे That हुए हैं is the promise of God. वो परमेश्वर का वायदा है They were waiting for the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के इंतजार में थे As the way Lord Jesus commanded them, they were waiting for one thing. जैसे यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी वो एक ही हृदय के साथ इंतजार कर They रहे were थे day and night. They were expecting one thing. They were praying for one thing. They were expecting for one thing. दिन और रात वो एक ही चीज की ओर लगे हुए थे एक ही चीज के लिए प्रार्थना कर So रहे when थे the day of Pentecost had fully come, जब पेंतिकुस्त का दिन आ पहुंचा they were all with one accord वो सब एक मन में थे in one place. एक जगह में थे My question, मेरा सवाल ये है before when they started, where they were? जब उन्होंने शुरुआत की तो वो कहाँ थे Second day where they were? दूसरे दिन वो कहाँ थे They were the same place. इसी जगह थे They were in the upper room. ऊपरी कोठरी में But थे Acts chapter 2, लेकिन प्रेरितों के काम उसके दूसरे the 10th अध्याय day, में Bible says, 10वें दिन वचन कहता है they became in one accord and they were in a one place. 10वें दिन वो एक मन के हो गए और एक जगह इकट्ठे थे My dears, last 10 days, पिछले 10 they were दिन patiently waiting one thing and praying for one thing. वो इंतजार में बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे They were waiting for one thing. वो एक ही चीज के इंतजार में थे Each one of them talking about one thing. हर एक व्यक्ति एक ही चीज के बारे में They बात कर रहा were है praying for one thing. वो एक चीज के लिए प्रार्थना कर That रहे is the हैं outpouring of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का चलन है In my words, that they were waiting and they were praying for one thing, that is for revival.
अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो वो ये है कि वो एक ही चीज के इंतजार में थे, वो है बेदारी। 120 people started to the pray. 120 लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना They करने heard लगे। from the Jesus उन्होंने यीशु से सुना that this outpouring will not delay. It will come very soon. ये उंडेला जाना बहुत जल्द आएगा। So they were earnestly praying. और इसीलिए वो इंतजार में थे, They प्रार्थना were कर रहे थे। earnestly seeking for it. वो संपूर्ण दिल के साथ उसको खोज रहे थे। While praying, और जब प्रार्थना कर रहे while थे, talking about revival, जब बेदारी के बारे में बात कर रहे while they थे, were waiting for it, जब वो उसके इंतजार में थे, each one of their heart became one. The heart, Holy Spirit started to unite their heart. पवित्र आत्मा ने क्या किया? उनके अंदर एक एकता दी। Every day, हर रोज, these 10 days, ये 10 दिन Holy Spirit were working all in them. पवित्र आत्मा उन लोगों के बीच में कार्य कर Holy रहा था। Spirit will working in them. The Holy Spirit is making them unite. पवित्र आत्मा उनको एक कर रहा था। Like a net threading, Holy Spirit is threading them all together. एक धागे को जैसे लेकर पवित्र आत्मा उन सबको एक साथ बांध रहा था। Like a fishing net, एक मछली पकड़ने वाले जाल के Holy समान Spirit is uniting everyone. पवित्र आत्मा हर एक को जोड़ रहा So था। the 10th day, तो 10वें दिन they all heart united. वो सब एक हृदय के हो Bible गए। says they were all in one accord. वचन कहता है कि वो एक मन के थे। Exactly, if we say they all became one in heart. अगर मैं उसको और बताऊं तो वो ये है कि उन सब का मन और उनके विचार एक हो गए। Maybe when they started praying, they had a different dreams. जब वो प्रार्थना में बैठे थे तो उनके विचार अलग हों, But when they were growing, लेकिन जब वो बढ़ रहे थे day by day, हर दिन, they started to become united and united, and they became one for one thing, that is revival. वो एक ही चीज की ओर अपने ध्यान को बढ़ाने लगे, वो थी बेदारी। They were united for one thing, that is outpouring of Holy Spirit. उनका इंतजार सिर्फ एक चीज के लिए था, वो है पवित्र आत्मा का उंडेला And जाना। yes, in these days, आज के दिन में I mean, Holy Spirit is uniting all of us for one thing. पवित्र आत्मा हम सभी को एक ही चीज के लिए जोड़ रहा है। India, it's our time for revival. भारत ये हमारा समय है बेदारी के लिए। The church history, कलीसिया के इतिहास first में revival happened Acts chapter 2. पहली बेदारी प्रेरितों के काम उसके दूसरे It अध्याय में हुआ। happened through a group, not a one person. वो एक झुंड के द्वारा हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। When they were united in heart, जब वो अपने हृदय में एक हो गए, when they were in one place, जब वो एक जगह that इकट्ठा the थे, mighty outpouring happened. वो उंडेला जाना हुआ। This is very significant season where we are right now. और ये जो समय जो हम अभी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। I believe मैं विश्वास it's करता the हूँ time of end time revival. ये अंत के समय की बेदारी का समय Our है। Jesus will come any moment. यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकता Before है। that glorious end time revival must happen. उससे पहले वो बेदारी होना बहुत And I जरूरी है। believe it will not happen through a solo performer. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, It will happen through a group of people whose heart and mind is united with the heart and mind of Jesus. वो एक झुंड के द्वारा होगा जिनका मन और विचार यीशु मसीह के मन और विचार से एकता में हो। So in these days, इन दिनों में those who are seeking for a revival, जो बेदारी के इंतजार में those है, who are praying for a revival, जो बेदारी के लिए प्रार्थना those कर who are रहे हैं, genuinely expecting a real revival, जो बेदारी के इंतजार में हैं, those heart, Holy Spirit is going to unite in prayer, in spirit. Prayer पवित्र and spirit. आत्मा आप सबको प्रार्थना में और आत्मा में एक करने जा Maybe रहा है। while we are watching this video on your mobile TV, wherever, जब आप इस वीडियो को अपने घर में, अपने टीवी में देख रहे हैं, while this time Holy Spirit may be connecting each one of our heart.
पवित्र आत्मा हम सब के हृदयों को जोड़ रहा He है. is uniting us for one thing. वो हम सबको एक ही विषय के लिए जोड़ रहा That है. is the revival. वो है बेदारी. So when they were praying and they were waiting for one thing, जब वो प्रार्थना करके इंतजार कर रहे थे, Holy Spirit, their heart became one. उनका हृदय एक हो गया. They united so much for one thing. वो इतने एकता में आ गए. I believe that one accord means the Christ's heart, their heart united, their desires united with the heart of Christ. इस एकता का मतलब ये है कि उनके हृदय और उनके विचार यीशु मसीह के हृदय और यीशु मसीह के विचार के साथ एक हो गया. They were all with one accord in one place. वो एकता के साथ एक जगह इकट्ठा How थे. it is possible? ये कैसे Right हो now, सकता है? now. अभी कैसे हो सकता है? Especially in this COVID situation. ऐसे कोविड के सिचुएशन में कैसे हो सकता It's है? very hard we all can come in one place. हम सबका एक जगह इकट्ठा होना बहुत My मुश्किल dears, है. I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ. this is here talking about this one place is not a physical place. मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो जगह एक जगह बता रहे हैं वो कोई एक जगह नहीं है. It's not a physical place, but it is a divine, a spiritual place. ये एक आत्मिक स्तर के बारे में बात कर रहे हैं. Maybe we are right now, maybe we hear, you guys are hearing this message from a different parts of world. शायद आप सब लोग इस दुनिया के अलग अलग कोने में से इस वचन को सुन रहे होंगे. Maybe you are hearing us from your home. शायद आप अपने घर से हमें सुन रहे होंगे. But we all can come in one divine spiritual place. लेकिन हम सब आत्मिक स्तर में एक जगह इकट्ठे हो For सकते a हैं. revival. एक बेदारी के लिए. Holy Spirit in these days, Holy Spirit is uniting us in one heart, in one place. पवित्र आत्मा हम सब के हृदयों को एक जगह एकता में इकट्ठा कर रहा He है. is bringing us into one place. वो हमें एक जगह इकट्ठा कर रहा Higher है. spiritual level. एक ऊंचे आत्मिक स्तर Where में we can receive and we can contain that kind of mighty outpouring and revival of Holy Spirit. जहां पे हम उस बेदारी को स्वीकार कर सके, उस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को स्वीकार कर सके. These 10 days, इस 10 दिन the Holy Spirit were preparing them for such kind of outpouring. पवित्र आत्मा उन सभी को इस उंडेले जाने के लिए तैयार कर रहा I था. believe it's the time. मैं विश्वास करता हूँ फिर से वो समय है. It's the time. फिर से वो समय Nowadays, है. I sense it in my spirit. Holy Spirit is preparing all of us, connecting all of us, uniting all of us, and bringing into a one place where we can contain, we can receive that end time revival. मैं अपने आत्मा में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम में से हर एक को उस बेदारी के लिए, उस अंतिम बेदारी के लिए आत्मा में जोड़ रहा है. Zalmana, Thanasini, Tabarabarabara. If you can pray in tongues for a moment with us, you may please pray. अगर आप इस क्षण आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें. Harasini, Tamana, Hadiri, Bidi, Yama, Radini, Kanase, Tahadini, Halbana, Araboshini. I am sensing in my spirit right now, Holy Spirit is moving in all of us. Our life. मैं अपने आत्मा में इस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य कर रहा है. He is uniting all of our hearts. वो हमारे हृदयों को एक कर रहा है. I mean, he is bringing us in a one place. वो हमें एक जगह इकट्ठा कर रहा है. If whether we are in a different place, we cannot reach that outpouring. अगर हम अलग अलग स्तर में हैं तो हम उस उंडेले जाने को स्वीकार नहीं कर Those who पाएंगे. are called for that, this right now, Holy Spirit is bringing all of them into that one place. लेकिन जो उस बेदारी के लिए चुने गए हैं उन सबको परमेश्वर एक जगह इकट्ठा कर रहा When है. the moment जब वो शुरू होगा, these 120 people reach that one place with one accord, जब ये 120 लोग एकता के साथ एक जगह इकट्ठा हुए, suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind. अचानक से आकाश से आंधी की सी सनसनाहट सुनाई दी. It filled the whole house where they were sitting. जहां वो लोग बैठे थे उस पूरे घर में वो भर गया. Suddenly,
अचानक, that suddenly is going to happen in our life any moment. वो अचानक ही हमारे जीवनों में होने वाला My है। dear, it's a high time. वो समय आ चुका है, It's a high time. वो समय आ चुका है। Expect a sudden movement of Holy Spirit in our life. अचानक ही उस पवित्र आत्मा के बहाव को आप अनुभव करने Maybe जा रहे in these हैं। days we also going to hear that mighty sound which is coming from heaven as a rushing mighty wind. हम आकाश में से उस सनसनाहट की आवाज को सुनने जा रहे हैं। Maybe just now you are hearing. शायद आप अभी उसको सुन रहे Right हैं। now your rooms, your house is going to filled with the presence of Almighty Holy Spirit. आप जहां बैठे हैं उस हाँ, घर में उसकी उपस्थिति भरने जा The रही Bible है। says it filled, the presence filled whole house where they were sitting. वचन कहता है कि जहां जिस घर में वो बैठे थे उस घर में वो भर गया। Holy Spirit is going to fill not only you but enter your house, the city, the house where you are right now, and the city where you are right now, the state right now. Holy Spirit is going to fill with His presence. परमेश्वर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि जिस घर में आप हैं, जिस शहर में आप हैं, उस सबको अपने आत्मा से भरने जा रहा है। Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. उसके बाद उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। To be the first time, such a move they were witnessing. पहली बार वो ऐसे बहाव को महसूस कर रहे थे। It's a season that we are going to experience new move of Holy Spirit in our life. It's nothing but it is the revival. हम ऐसे अनुभव को हम फिर से महसूस करने जा रहे हैं। कुछ नए अनुभवों को हम पाने जा रहे हैं। Revival, I mean, when it happens, they always started to speak in tongues. और जब ऐसा हुआ उनमें से हर एक व्यक्ति अन्य अन्य भाषाओं में बात करने As the लगा। Spirit gave them utterance. और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ When दिया it happens, और जब ये हुआ entire city, those who were dwelling in Jerusalem, they all came to know that it happened. और जिस यरूशलेम में वो लोग थे वो पूरा शहर जान गया कि वहां क्या हुआ। Ideas in this move, this revival, the director, the who is going to do the anchoring, that will be no one else. It will be Holy Spirit. और इस अंतिम बेदारी में जो हमारी अगुवाई करेगा, जो हमें चलाएगा, वो और कोई नहीं है, पवित्र आत्मा है। Human, there will not be any space for a human. Like, it won't be a director or it won't be anchored by a human, but it will be moved, led by Holy Spirit. वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाएगा। It will be full of Holy Spirit show. वो पूरा पवित्र आत्मा का कार्य होगा। It's the time वो समय है that we are going to experience that kind of move of Holy Spirit in our life. वो समय आ चुका है कि हम पवित्र आत्मा के ऐसे बहाव को महसूस करने जा रहे When हैं। the Holy Spirit came on them, entire city came to know it. और जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, पूरा शहर उसको जान गया। It will not be a secret move. अब ये कुछ छुपी हुई बातें नहीं It will रहेंगी। not be a secret revival. ये गुप्त में होने वाली चीजें नहीं रहेंगी। The amount of Holy Spirit, the Holy Spirit, when it comes such a way on us, entire city is going to know it. जब पवित्र आत्मा ऐसे सामर्थ के साथ हमारे ऊपर उतरेगा, पूरा शहर उसको जान जाएगा। When right now you are in an upper room, you are in a secret place, you are in a hiding, but when the moment Holy Spirit started to show up such a way, entire city will come to know that there is a move of God, there is a move of God happening, there is a revival is happening. अभी आप शायद ऊपरी कोठरी के अनुभव में होंगे, आप गुप्त में बैठे होंगे, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा, पूरा शहर जान जाएगा कि एक पवित्र आत्मा का चलन हुआ Right है। now you may inside the house, but coming days, what God is doing through you or in you or with you, the entire nation is going to know it.
अभी शायद आप अपने कमरे में बंद होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा समय आ रहा है कि सब जानेंगे कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। India, get ready. भारत तैयार हो। Outpouring, the revival which God is going to send in our midst, its entire world is going to see it, and they will be amazed, and they are going to come and know it, that what Lord is doing through us. आप तैयार हो जाएं कि वो जो उंडेला जाना होगा, वो जो बेदारी होगा, सब लोग देखेंगे, पूरा संसार देख के चकित रहेगा, वो उसको अनुभव करने के लिए आएंगे। 120 people were hiding and secretly they were praying. वो 120 लोग जो थे वो छुपे हुए थे और वो गुप्त में प्रार्थना कर रहे थे। When the moment Holy Spirit came upon them, लेकिन जिस क्षण पवित्र आत्मा उन पर उतरा, they forget the situation. वो हर परिस्थिति को भूल They गए। forget what people tells about them. वो ये भूल गए कि लोग उनके बारे में क्या The कहते हैं। fear gone out of them. उनके अंदर का डर चला गया, Their voice raised. उनकी आवाज खुल गई। Started to praise God. वो अपने ऊंचे आवाज में परमेश्वर की आराधना करने They लगे। started to declare the glorious things about God. वो परमेश्वर की महानता को बताने And लगे the city came to know that. और पूरा शहर उसको जान गया। My dear, those who are waiting for a move of God, outpouring of Holy Spirit and a revival, those who are praying for it, my dears, I am prophesying you cannot hide no anymore, because it's the time when the moment Holy Spirit comes over you such a way, the entire city is going to come to know it and they are going to experience it. मेरे प्रियो, अब वो समय आ चुका है कि जो गुप्त में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बेदारी के समय पवित्र आत्मा आपको उठाकर बाहर लाएगा और परमेश्वर के कार्य लोग देखेंगे। Maybe right now you are hiding yourself, maybe you are scared of people. शायद आप इस समय छुपे हुए हैं, आप लोगों से डरे हुए हैं, But in the revival, लेकिन बेदारी में there is no space for fear. डर की कोई जगह नहीं है। They will be such as those who are standing in the revival, they will be so bold and they will declare their Lord boldly. और जो बेदारी में खड़े होंगे वो डर के साथ नहीं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर का प्रचार करेंगे। And this revival, when revival happens, और जब ये बेदारी होगा, mighty outpouring will be on the children of God, on believers, those who are praying. जो परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर ये उंडेला जाना होगा। At the same time, उसी समय there will be mighty evangelism will happen. और पूरे जगह में परमेश्वर की जो सुसमाचार है वो फैलेगा। There will be mighty transformations. बहुत बड़े बदलाव होंगे। There will be great salvation. बहुत झुंडों में उद्धार होगा। People will start to accept Jesus. लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। It happened in Acts chapter 2. ये प्रेरितों के काम उसके दूसरे When अध्याय में the हुआ, Holy Spirit came upon them. जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। When whole revival were happening in 120 people. जब ये बेदारी 120 लोगों के बीच में हुआ, When Holy Spirit were dealing with this 120 people, जब पवित्र आत्मा ये 120 लोगों के बीच में कार्य कर रहा था, the entire city came to know it. वो पूरा शहर उसको जान गया And they came. और वो आए। And when that time when Peter arose and started to preach, Bible says that same day 3,000 people being baptized and added into the church. और आगे लिखा है कि उसी समय जब पतरस खड़े होकर परमेश्वर का प्रचार करने लगा, उसी दिन 3,000 लोग परमेश्वर के राज्य में जुड़ गए। Church, we are going to experience such a great outpouring of Holy Spirit in revival. इस बेदारी में भी हम परमेश्वर के ऐसे बहाव को देखेंगे। Church will experience.
कलीसिया उसको Body देखेगी, of Christ will experience it. कलीसिया उसको देखेगी। At the same time, उसी समय we are going to witness the greatest harvest which ever happened in our nation. और हम ऐसे एक कटनी को भी देखने जा रहे हैं जो इतिहास में नहीं When the हुआ। Holy Spirit, where there is an outpouring of Holy Spirit, where there is a revival, it will edify, it will ignite the body of Christ, but at the same time, there will be a great harvest will be there. Harvest of souls will be there. जब ये बेदारी आएगी वो कलीसिया को तो जागृत करेगी, लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ी कटनी को हम काटने जा Shall रहे we हैं। close our eyes and pray together? हम अपनी आंखों को बंद करें, Those प्रार्थना who are करें, expecting a revival, जो उस बेदारी के इंतजार में हैं, those who are patiently waiting for a revival, जो उस बेदारी के लिए इंतजार कर रहे those who are हैं, praying for a revival, जो उस बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, come and shall we pray together this time. हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। Shana Harahadidi. Holy Spirit is uniting every one of our heart. पवित्र आत्मा हम सब के हृदयों को जोड़ रहा है। He is bringing us into one place वो हमें एक जगह इकट्ठा कर रहा where we है can contain and receive that great outpouring of Holy Spirit. जहाँ हम में से हर एक उस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को महसूस कर सके। Shandara, take this message seriously. इस मैसेज को आप बहुत सीरियसली लें, Receive it by faith. विश्वास के साथ उसको You स्वीकार करें। are going to experience the mighty outpouring of Holy Spirit in your life coming days. आने वाले दिनों में आप उस पवित्र आत्मा के चलन को महसूस करने जा रहे India, हैं। it's the time that we are going to experience the outpouring of Holy Spirit in a greater measure, in a greater level. भारत अब ये समय आ चुका है कि आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के चलन को एक अलग स्तर में हम महसूस करने जा रहे हैं। Shantarabara, Rai Hashini Dharabara, Tarar Thara, like a fishing net. Holy Spirit is uniting each one of us. एक जाल के समान पवित्र आत्मा हम में से हर एक को जोड़ रहा है। Where is a great harvest is waiting for us. एक बड़ी कटनी हमारे लिए इंतजार कर रही India है। is going to experience a great harvest. There God is preparing such kind of mighty evangelists, mighty anointed apostles in these days to send different parts of India to reap a great harvest. परमेश्वर एक ऐसी बेदारी भेजने जा रहा है और हम इस हर एक को उस कटनी के लिए वो तैयार कर रहा है। God want to use all of us for that. परमेश्वर हम में से हर एक को उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। One accord in one place. एक मन के साथ एक जगह। Pray for each one of us. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Just pray, all of us pray for each one of us. हम में से हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Pray that Lord connect each one of us, connect your body of Christ so with a one accord, with a oneness. कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने कलीसिया को एक मन और एकता के साथ जोड़ दे। When they came into one accord in one place, they started to experience the mighty outpouring of Holy Spirit. जब वो एकता के साथ, एक मन के साथ एक जगह इकट्ठे हुए, तब उन्होंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अनुभव किया। When the movement they started to experience Holy Spirit, their fear gone, they started to boldly declare Jesus. और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो उनका डर चला गया और वो पूरी दृढ़ता के साथ प्रचार करने When the लगे। Holy Spirit came, over 120 people, but in their city came to know that. जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो पूरा शहर वो जान गया। It is going to happen in India. ये भारत में होने जा It रहा is going to है। happen in our church. ये हमारे कलीसिया में होने It is जा रहा going to है। happen in our life. ये हमारे जीवन में होने Get जा रहा ready है। for that. आप उसके लिए तैयार हो Heavenly जाएं। Father, thank you for your word. पवित्र आत्मा इस वचन के लिए Lord, धन्यवाद। thank you uniting hearts and mind in these days. धन्यवाद कि आप हमें से हर एक के मनों को जोड़ रहे हैं। Lord, thank you, you're bringing all of us in one divine place, one spiritual place where we can receive that kind of move of God.
धन्यवाद कि आप हम में से हर एक को आत्मिक स्तर में एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। Raka satini tasini tumana hadiri bini atagajana hadiri bini raide diri lameteni hosi neheshi wo rama. We pray, Lord, let from now, right this moment, may all of us start to experience a different kind of more Holy Spirit in our life. अभी इस क्षण से हम में से हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के उस चलन को महसूस करने पाए। Thank you, Daddy, that you are going to use all of us for that revival. धन्यवाद पिता कि आप हम में से हर एक को उस बेदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 My dears, it's a prophetic word which I shared today with you. आज जो मैंने आपसे बांटा है ये एक भविष्यवाणी का शब्द है। Believe it's a time of end time revival. आप विश्वास करें कि अंत के समय का बेदारी का समय आ चुका है। Right now we are in a different places. अभी हम शायद अलग-अलग जगह होंगे। But Holy Spirit is going to unite our heart and bringing us into a one spiritual level, spiritual place where He can send out that revival and where He can send out that outpouring. लेकिन इस समय पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है, आत्मिक रूप से एकता में ला रहा है, आत्मिक एक स्तर में ला रहा है जहां हम उसके बेदारी को महसूस कर पाए। All things will work together for our benefit. हर एक चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। Expect a great revival. एक बड़े बेदारी के इंतजार में रहें। Pray for a revival. बेदारी के लिए प्रार्थना करें। Your waiting period has to over. अब आपका इंतजार का समय बिल्कुल खत्म होने वाला है। Experience that revival. और उस बेदारी को आप अनुभव God करें। bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Amen. Amen. आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर शिबिन उस अद्भुत वचन के लिए। प्रभु के दास को प्रभु बहुत आशीषित करे। एक बड़े बेदारी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, प्रभु कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस समय हम प्रभु के राज्य में बीज बोने जा रहे हैं, दशमांश और बेट। आप इस समय आपके सामने जो अकाउंट डिटेल्स देखेंगे उसमें आप दशमांश और बेट डालेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं कि आप लोग प्रभु के राज्य में अपने धन में से एक उत्तम भाग बेट डाला है। आपका हर एक पैसे प्रभु के राज्य में जो जाते हैं उसका 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल आप आपके जीवन में काटने पाए, फल को देखने पाए, आपके परिवार के लिए, आपके संतानों के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए ये बड़ा आशीष के कारण होने पाए। हालेलुया। यदि कोई भी प्रभु के राज्य में अपने धन में से बीज को डाला है तो वो कभी लज्जित नहीं हुआ है, कभी वो कर्ज में डूबा नहीं है। हमेशा वो एक चट्टान के ऊपर प्रभु उनको खड़ा कर देता है, उनके सिर को ऊंचा करता है, उनको प्रभु आमीन मान सम्मान देता है और उनके आमीन हाथों के कामों को प्रभु बढ़ाता है। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आशीषित करे। प्रार्थना के साथ हम आज की इस ऑनलाइन सर्विस को हम समाप्त करने जा रहे हैं। अब जहाँ भी ये समय अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें। सुने हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करें। हमें प्रभु के दास के द्वारा हमने ये सुना कि एक बड़े बेदारी आ रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों में आत्मा का बड़ा उंडेला जाना को देखेंगे। साथ में देश में सुसमाचार का आग फैलते हुए हम देखेंगे, चाहे वो डिजिटल के द्वारा हो, चाहे वो आमीन आमीन बाहर आमीन मीटिंग्स के द्वारा हो, कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु सब कुछ जानते हैं। मगर आज आप तैयार हो जाइए, सुसमाचार सुनाने के लिए भी तैयार हो जाइए। बहुत सारे पापी लोग धर्मी बनने पाए, अंधकार से रोशनी के राज्य में, प्रभु के राज्य में लोग आने पाए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह भी हमें ऑनलाइन के द्वारा आपकी आराधना और स्तुति करने में आपने मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना और स्तुति में आपकी अद्भुत उपस्थिति रहा, धन्यवाद। हालेलुया। आपकी अद्भुत वचन आज आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बड़े बेदारी हमारे बीच में होने जा रहे हैं, हमारे सामने होने जा रहे हैं, देश में होने जा रहे हैं। हर एक विश्वासियों को अब जागृत कर रहा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हमें अन्य जातियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में सुसमाचार का आग इन दिनों में फैलने पाए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस हफ्ते की हर प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते, खास तौर से इस पूरे हफ्ते जूम के द्वारा जो प्रार्थना का चलन है, उस चलन में सब लोग जुड़ने पाए प्रभु, अद्भुत कार्य को देखने पाए। पहली बार जिंदगी में प्रभु डिजिटल वर्ल्ड के द्वारा अद्भुत पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उंडेला जाना को हम हमारे घरों में देखते हुए हम आनंदित होने पाए प्रभु। वो एक बड़े बेदारी की ओर हमें ले जाने पाए, अगुवाई करने पाए, धन्यवाद प्रभु। आमीन, हालेलुया। आज आपके राज्य में आमीन धन में से दशमांश और बेट डाले हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके आमीन आर्थिक क्षेत्र में 100 गुना आशीष को हम बोलते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आशीषित किया। आमीन। इस पूरे हफ्ते की सभा में आपकी अगुवाई को हम मांगते हैं। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। पुत्र यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। Amen and amen. God bless you. Thank you for staying tuned. हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते की जूम प्रेयर कृपया मिस ना करें। नए लोगों से फिर से कहना चाहते हैं, अपना डिटेल्स नीचे जरूर दे दीजिएगा, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। See you next week on Masigar YouTube channel. Till then, may God be with you.